أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 13واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح مدینہ طیبہ میں احد کے ارادے سے اپنے دولت خانے مکان سے باہر آئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچے پر قائم کرتے. سبھی مفسروں کا قول ہے کہ بدر کی جنگ میں ہارنے کے بعد کافروں کو بڑا دکھ تھا، اس لیے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر اکٹھا کر کے چڑھائی کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کافروں کی فوج احد میں اتری ہے تو آپ نے صحابہ سے صلاح کی. اس بیٹھک میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا جو اس سے پہلے کبھی کسی صلاح کے لیے بلایا نہ گیا تھا. اکثر انصار کی اور اس عبداللہ کی یہ رائے ہوئی کہ حضور مدینہ طیبہ میں ہی قائم رہیں اور جب کافر یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے. یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے اور اسی پر انہوں نے زور دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور ہتھیار لگا کر باہر تشریف لائے. اب حضور کو دیکھ کر صحابہ کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور کو رائے دینا اور اس پر زور دینا ہماری غلطی تھی، اسے معاف فرمایا جائے اور جو سرکار کی مرضی ہو وہی کیا جائے. حضور نے فرمایا کہ نبی کے لیے اچھا نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار دے. مشرک فوج احد میں بدھ جمعرات کو پہنچی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کے جنازے کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال سن 3 ہجری اتوار کے دن احد میں پہنچے.
यहाँ आप और आपके साथी उतरे और पहाड़ का एक दर्रा जो इस्लामी लश्कर के पीछे था उस तरफ से डर था कि किसी वक्त दुश्मन पीछे से आकर हमला करे, इसलिए हुजूर ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को 50 तीर अंदाजों के साथ वहां लगाया और फरमाया कि अगर दुश्मन इस तरफ से हमला करे तो तीरों की बारिश करके उसको भगा दिया जाए, और हुक्म दिया कि कुछ भी हो जाए यहाँ से न हटना और इस जगह को न छोड़ना, चाहे जीत हो या हार। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक, जिसने मदीने तैयबा में रहकर जंग करने की राय दी थी, अपनी राय के खिलाफ किए जाने की वजह से कुद्द हुआ और कहने लगा कि हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई उम्र के लड़कों का कहना माना और मेरी बात की परवाह नहीं की। इस अब्दुल्लाह बिन उबई के साथ 300 मुनाफिक थे। उनसे उसने कहा, जब दुश्मन इस्लामी लश्कर के सामने आ जाए उस वक्त भाग पड़ना, ताकि इस्लामी लश्कर तितर बितर हो जाए और तुम्हें देखकर और लोग भी भाग निकलें। मुसलमानों के लश्कर की कुल संख्या इन मुनाफिकों समेत 1000 थी और मुशरिकों की तादाद 3000। मुकाबला शुरू होते ही अब्दुल्लाह बिन उबई अपने 300 मुनाफिक साथियों को लेकर भाग निकला और हुजूर के साथ 100 सहाबा हुजूर के साथ रह गए। अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम रखा, यहाँ तक कि मुशरिकों को पराजय हुई। अब सहाबा भागते हुए मुशरिकों के पीछे पड़ गए और हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कायम रहने के लिए फरमाया वहां कायम न रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें यह दिखाया कि बदर में अल्लाह और उसके रसूल की फरमानबरदारी की बरकत से जीत हुई थी। यहाँ हुजूर के हुक्म का विरोध करने का नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ताला ने मुशरिकों के दिल से डर और दहशत दूर फरमा दी और वो पलट पड़े और मुसलमानों को परास्त होना पड़ा। रसूल करीम सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जमात रही जिसमें अबू बकर व अली व अब्बास व तलहा व सदद थे। इसी जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद हुए और चेहरे पर जख्म आया। इसी के संबंध में यह आयत उतरी, और अल्लाह सुनता जानता है। जब तुम में के 2 दलों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, ये दोनों समुदाय अंसार में से थे, एक बनी सलाम खजरज में से और एक बनी हारिस औस में से। ये दोनों लश्कर के बाजू थे। जब अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक भागा तो इन्होंने भी जाने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने करम किया और इन्हें इससे महफूज रखा और वो हुजूर के साथ डटे रहे। यहाँ उस नेमत और एहसान का जिक्र फरमाया है और अल्लाह उनका संभालने वाला है और मुसलमानों का अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तुम्हारी तादाद भी कम थी, तुम्हारे पास हथियारों और सवारों की भी कमी थी। तो अल्लाह से डरो, कहीं तुम शुक्रगुजार हो। जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें यह काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र और तकवा करो और उसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। चुनाचे ईमान वालों ने बद्र के दिन सब्र और तकवा से काम लिया। अल्लाह ताला ने वादे के मुताबिक 5000 फरिश्तों की मदद भेजी और मुसलमानों की विजय और काफिरों की पराजय हुई। और यह फतह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी खुशी के लिए और इसीलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले और दुश्मन की बहुतात और अपनी अल्पसंख्या से परेशानी और बेचैनी न हो। और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। तो चाहिए कि बंदा उस जात पर नजर रखे जो हाजतमंद को उसकी हाजत की पूर्ति के साधन उपलब्ध कराता है, यानी अल्लाह ताला, और उसी पर भरोसा रखे, इसलिए कि काफिरों का एक हिस्सा काट दे, इस तरह कि उनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हों और गिरफ्तार किए जाएं, जैसा कि बद्र में पेश आया, या उन्हें जलील करे कि नामुराद फिर जाएं। यह बात तुम्हारे हाथ नहीं, या उन्हें तौबा की तौफीक शक्ति दे या उन पर अजाब करे कि वो जालिम हैं। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।
اللہ حافظ.